हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मेथड्स या अलग अलग टाइप के टर्म्स को यूज करते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने मास बाय मास परसेंटेज देखा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा है, उसके बाद में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा, उसके बाद में पार्ट्स पर मिलियन देखा, उसके बाद मोल फ्रैक्शन देखा। और अभी हम इस लेक्चर में दो नई चीजें सीखने वाले हैं। तो खाली में कंप्लीटेड दिस इज सिक्स्थ वन। सिक्स्थ क्या है? मोलैरिटी। व्हाट इट इज? Molarity, and it is represented as capital M, represented as capital M, and it is defined as, इसकी definition कैसे देखो, number of moles of substance, okay, so for which we are going to calculate or we are interested in the concentration of substance, okay, so the number of moles of a substance present in 1 liter of solution. 1 liter of solution. Liter. So this is very important. We have to use the volume of a solution in terms of liter. Or we can write a formula on the definition. Molarity is equal to, molarity capital M is equal to number of moles of a solute, or we can say here substance, solute or substance, number of moles of a solute or number of moles of a substance divided by volume of solution in liter. So for the unit for this is mole. नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूनिट क्या यूज किया जाता है? मोल यूज किया जाता है। और इधर वॉल्यूम किसने ले रहे हैं? लीटर में ले रहे हैं। सो द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, दैट इज कैपिटल M, इज मोल पर लीटर, और वी कैन राइट मोल पर लीटर। एक तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो यूनिट याद रखो, यूनिट हमें लिखने का है। ओके, यूनिट में क्या करने का है? लिखने का है। तो दिस इज व्हाट मोलैरिटी, एंड द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द और टू एक्सप्रेस द concentration of solution is it molarity. It is what? Molarity, and molarity is represented by, it is denoted by small m. Okay, small m, and what it is? It is defined as number of moles of a solute or substance present in 1 kg of solute. Okay, here we are using solution. Here what we have to use? Solvent. And how it is? In 1 kg of solvent. So the mass of solvent must be in kilogram. ग्राम में नहीं लेने का है, किलोग्राम में चाहिए। और उसके ऊपर से हमने मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लिखा है। कि मोलैरिटी स्मॉल m के लिए फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट और सब्सटेंस divided by mass of the solvent in kilogram, in kg. Okay, and that's why unit of small m, that is molarity, is what? Number of moles, once again mole per kg, or we can write mole kg is to minus 1, that is mole per kg. Okay, so whenever we talk about the concentration of solution in terms of molarity or molality, generally we are not using
Okay, while writing we write that mole per liter, but when we are saying the concentration, okay, we say that molar solution, molar solution, okay, or we say 1 molar solution, 1 molar solution, okay. So molar, whenever the solution represented as a molar or it is represented as 1 capital M, it means that it is a mole per liter. It is what? Molarity. Okay. And when the concentration is expressed in terms of molarity, we express it as 1 molar solution. 1 molar solution. Or you can write it as 1 small m solution, that is 1 molar solution. What it means? It means that 1 mole per kg. What is its concentration? 1 mole per kg. It is the concentration of the solution, but whenever we represent that solution, we represent as 1 molar solution or 1 small m solution. It both means, okay, both what it means? It means 1 mole per kg of a solution. Okay, here when we use molar solution or 1 capital M solution, it means that mole per liter, 1 mole per liter solution, 1 mole per liter solution. So these are the 7 different terms which are used to express the concentration of solution, used to express the concentration of solution. And we have to remember the last 3. Okay, it is very important. The first is also important, the mass percentage is also important. Okay, then ppm is also important. It is not like that they are not important at all. Okay, volume by volume and mass by mass, it is also important. Parts per million is important. Then mole fraction, molarity and molality is very important, because many of the time the board may ask question related to mole fraction, related to molarity or related to molality. Okay, either in the 1 mark question or in the 2 mark question. If they are asked for 1 mark, they just ask for the definition. What is molarity? What is molality? If they ask for 2 marks, they directly ask the numerical, the sum. Okay, they may say that this much amount of substance is dissolved in this much volume of solution. Find out the molarity of solution. Or they may say that x gram of the substance is dissolved in y gram of solvent. Okay, calculate the molality of solution. Or they may ask like that this much a amount of substance dissolved in b gram of solvent. Find out the mole fraction of solute and solvent. Okay, likewise. So they may ask this sum for 2 marks. They may ask 1 mark question as a definition. Either you write definition or you write formula. Both are correct. Either write definition or formula. Both are correct. Okay. So this is what? This is regarding the expression of concentration of a solution by the different ways, in the different terms. Okay. So today we will discuss the one example of each. Okay, one numerical for each: mole fraction, molarity, and then molality. So first I will write that example. Okay, and then we will solve the same. Okay, I will pause the video, write it first, and then we will discuss. So the numerical is it is on the board. Okay, what it is, I will read out. Calculate the mole fraction. Okay, calculate the mole fraction of ethylene glycol, that is C2H6O2, in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass.
by mass. So the concentration of a solution is given in terms of weight by weight. In terms of weight by weight. Okay. So the formula. Okay. First I will write the formula, then I will discuss the given things, and then we will move. What is formula for mole fraction? Mole fraction X of ethylene glycol. Ethylene glycol is equal to what it is? Number of moles. Okay, so small m of ethylene glycol divided by number of moles of solution, that is number of moles of ethylene glycol plus number of moles of water. Why water only? Whenever there is no solvent is given, जब भी कोई न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट नहीं दिया जाता है या कोई भी सेंटेंस केमिस्ट्री में बनाया जाता है इसमें सॉल्वेंट का नाम नहीं आता है, उस टाइम याद रखो कि वाटर ही आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। वाटर ही क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? अगर मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं, ओके, इफ वी वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। ओके, तभी मैं इसको क्या करूंगा? कैलकुलेट कर रहा हूं। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ मोल्स यानी कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल चाहिए। ओके, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए? स्मॉल m। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसके लिए मुझे मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल चाहिए, उसके बाद मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल चाहिए। अगर ये दो चीजें मिल गई तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैलकुलेट कर सकता हूं, और मोलर मास ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर अगर मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूं? वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर ये दो चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली तो मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मास के लिए क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर we have 100 gram solution। क्या अज्यूम करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? देखो कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ऐसा कंसीडर करेंगे। ओके, अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट किया है 20% वेट बाय वेट, व्हाट इट मींस? इट मींस दैट कि 20% वेट बाय वेट ऑफ इथाइलिन glycol means what it means? It means that 20 gram of ethylene glycol, EG ethylene glycol dissolved in 80 gram water, 80 gram of water, so as to get 100 gram solution। 20% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल लेंगे और उसको 80 ग्राम में डिसॉल्व करेंगे। 20 प्लस 80 क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। ये मास बाय मास का परसेंटेज मिल गया। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे बनाया है? सॉल्यूशन बनाया है 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है, 80 ग्राम वाटर लिया है और बनाया है। अभी देखो हमारे पास मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है, हमारे पास मास ऑफ वाटर है। ओके,
we have molecular formula for ethylene glycol. Okay, molecular formula ethylene glycol का दिया है. वाटर का molecular formula मोल है पता है. ओके, अगर ये दो चीजें पता है तो मैं मोलर मास जो है कैपिटल एम उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ. कि मोलर मास कैपिटल एम कैलकुलेट कर सकता हूँ और उसके ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम इजीली जा सकते हैं. तो चलेंगे पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए. तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं इसको. मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास of ethylene glycol, Eg. What it has formula? It has formula C2H6O2. Okay. So what we can write? कार्बन का मास 12. कितने कार्बन है? 2 कार्बन. Okay, 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन का मास. ओके, फिर हाइड्रोजन का मास उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6. हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है. और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है. इसकी एडिशन करेंगे. और क्या है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है. कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन. ठीक है. तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट sum of atomic masses of all atoms present in the molecule. Okay, तो सभी मॉलिक्यूल में जितने भी सारे एटम हैं उसका क्या है? एटॉमिक मास लिया है और इनके हम क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे. 12 2 is 24, 6 1 6 is 6 and 16 2 is 32. Okay, 32 तो 38 and it's become 62. 38 42 and 20 62. मोलर मास मिल गया किसका? इथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, मोलर मास ऑफ वाटर अगर किसी को पता नहीं है तो कैलकुलेट करो. अगर पता है तो डायरेक्टली लिखो. वाटर में क्या है? H2 है. कितने? हाइड्रोजन का मास कितना? 1. टोटल कितने हैं? 2 है. प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ही है. ऑक्सीजन का मास 16 प्लस 1 कितना होगा? 2 प्लस 16. दिस इज इक्वल टू 18 ग्राम. ये क्या है? इसका मोलर मास. ओके, अभी हम चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए. नंबर ऑफ मोल्स of ethylene glycol. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कैलकुलेट करेंगे. कितना ग्राम है? कैसे करते हैं? n नंबर ऑफ मोल्स n is equal to mass of the substance divided by its molecular mass. तो 20 divided by 62. 20 divided by 62 और ये करोगे तो आपको मिलेगा 0.322. ओके, ये क्या हो गया? मोल. क्या हो गया? मोल हो गया. तो ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज n. ओके, और NH2O. कितना मास है वाटर का? 80 ग्राम है. ओके, 80 ग्राम है. और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम है. तो ये 18 ग्राम. 80 को डिवाइड करेंगे 18 से तो दिस बिकम्स 4.44 मोल बनेगा. ओके, अभी चलते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन की तरफ. इस फॉर्मूला की तरफ अभी देखो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है हमारे पास. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है हमारे पास. क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो XEG इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू
ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कितना है 0.322, ओके 322 divided by number of moles of ethylene glycol plus number of moles of water. ओके, पहले इन दोनों की एडिशन करो, बाद में डिवाइडेशन करो. ओके, बाद में क्या करो, इसको डिवाइड कर दो. क्या मिलेगा आंसर? आंसर मिलेगा 0.068. This is what? This is mole fraction for ethylene glycol. ethylene glycol. वैसे हम XH2O भी डिटरमाइन कर सकते हैं. मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर. मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर क्या करने का है? क्या होगा? नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ethylene glycol प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. ओके, ऐड करेंगे वैल्यू 4.424 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44. अगर ये करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 0.932. 0.932. ये क्या हो गया आपका? मोल फ्रैक्शन हो गया वाटर के लिए. ओके, अभी देखो हमने इक्वेशन कल स्टडी किया था x1 plus x2 is equal to 1. देखते हैं फिर वैसा ही हो रहा है. ओके, सो x1 क्या है? 0.068 है और x2 क्या है? 0.932. ओके, एडिशन करके देखो, एडिशन करके देखो बनता है क्या? 0.068 and 0.932. 8 और 2 10, 6 and 4 10, 9 plus 1 10. हो गया, क्या हो गया? यूनिटी R. ओके, और we have studied that x2 is equal to 1 minus x1 x1. ओके, 1 minus x1 ये हमने स्टडी किया है. तो वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है जो आया है 0.932. ओके, उतना ही आता है. क्या आता है? अगर हम x2 is equal to 1 minus 0.068 कर देंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 932 है. ठीक है ना? So this is a numerical related to what? Mole fraction. Okay, mole fraction. The numericals related to the molarity and molality we will discuss in the next lecture. First, for once again I will repeat for understanding purpose. We have started with the numerical saying that calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol in ethylene glycol by weight. Okay, तो हमने एक फॉर्मूला लिख के लिया मोल फ्रैक्शन के लिए. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला में क्या बना? मोल फ्रैक्शन ऑफ ethylene glycol x is equal to number of moles of ethylene glycol divided by number of moles of ethylene glycol plus number of moles of water. Okay, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ethylene glycol भी नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी नहीं दिया है, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं दिया है. न्यूमेरिकल में खाली क्या दिया है? 20% का सॉल्यूशन है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ethylene glycol. ओके, उसके ऊपर से हमें कंटिन्यू करना है. तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मास चाहिए, मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए और उसका मोलर मास भी चाहिए. तो वो कैलकुलेट करने के लिए, कि वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? हमने कंसीडर किया. क्या कंसीडर किया? कि आपके पास कितना सॉल्यूशन है? 100 ग्राम सॉल्यूशन. ओके, 100 ग्राम सॉल्यूशन है. अगर सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है और
बोल रहे हैं कि 20% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन है। ये जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, 20% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ऐसा होता है कि 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर, dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो मिल गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल चाहिए था, मास ऑफ वाटर चाहिए था, वो हमें क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अभी बचा क्या, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास के लिए हमने कैलकुलेशन ले लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे लिया और सभी एटम के एटॉमिक मासेस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मास हमें मिला, मॉलिक्यूलर मास, वो मिला 62 और वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास मिला वो मिला 18। ओके, वो कितना मिला, 18 मिला। अभी मॉलिक्यूलर मास मिला है और सब्सटेंस का भी मास अवेलेबल है, तो हम क्या करने गए, नंबर ऑफ मोल्स n कैलकुलेट करने के लिए गए। और वो नंबर ऑफ मोल्स n कैसे कैलकुलेट किया, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास से किया। तो हमें 0.3 ये इधर मिला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किए तो 4.44 मिला। अभी हमने फॉर्मूला में ये क्वांटिटीज डाल दी और हमने फाइंड आउट कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल दैट इज 0.068 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज 0.932. So this is for the today. Okay, the remaining two numericals related to molarity and molality we will discuss in the next lecture. Thank you.